बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज पहला मैथ का क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। सबसे पहले मैं रियल नंबर के बारे में बताऊंगा आपको, और ये रियल नंबर क्या होता है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers but Q is not equal to 0, is called rational number. Example 2 by 3, 1 by 2. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर। एनी नंबर which can any number which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integer, is called irrational number. एग्जाम्पल है √2, √3, √5 etc. रेशनल और इरेशनल के बाद हम आपको बताएंगे रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानना है। 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपके 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। रियल नंबर ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। is called real number. रियल नंबर जैसे 1 by 2, √2, 3 by 2 माइनस है √5 etc. यहां पे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे पहला क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखेंगे। इच रेशनल नंबर is a real number but each real number is not a rational number. दूसरा क्वेश्चन है each every irrational number
every irrational number is a real number, but every real number is not an irrational number. इस तरह से रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर के बारे में आपको बताया गया कि रेशनल नंबर any number which can be written in the form of p by q where p and q are integers but q is not equal to 0 is called rational number. और irrational number है any number which can not be written in the form of p by q where p and q are integer is called irrational number. And real number are the combination of rational and irrational number. फिर मैंने आपको दो नोट लिखवाया कि each rational number या every rational number is a real number but every real number is not a rational number. सेम दूसरा है every irrational number is a real number but every real number is not an irrational number. यहाँ पे दो तीन बातें आपको और जाननी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे the sum, the difference, the product and the quotient of a rational and irrational number is an irrational number. Example 2 plus root 3, 2 minus root 3, 2 root 5 और 3 by root 2 या root 5 by root 2. All above numbers are irrational number. नेक्स्ट चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है द सम नोट the sum of two irrational number is always an irrational number. Note 2, the difference of two irrational number is always an irrational number. Note third, the product of, एग्जाम्पल है इसका √2 और √2 प्लस √3, इसका एग्जाम्पल √3 माइनस √2. द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number may be rational or irrational both. Example, √2 and √2 equal to 2 rational number, but √2 into √3 equal to √6 irrational number. Note 4,
the quotient of two irrational number may be rational or irrational both. Example, root 5 divided by root 5 1/2 रेशनल नंबर है. नेक्स्ट, रूट 3 बाई रूट 2 इरेशनल नंबर है. इस तरह से माय डियर आपको बताया गया रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज और उनके बीच का रिलेशन. हमने आपको बताया कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होता है. जब एक रेशनल और एक इरेशनल का अब हम डिफरेंस करते हैं तो एक इरेशनल नंबर होता है. लेकिन जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा इरेशनल नंबर होता है. जब एक इरेशनल और एक रेशनल का क्वोटिएंट किया जाता है तो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है. मतलब द सम, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट and the quotient of a rational and irrational number is always an irrational number. But the sum of two irrational number is always irrational number. The sum of two irrational number is always irrational number. The difference of two irrational number is always an irrational number. But the product of irrational number may be rational or irrational, just like these two examples. रूट 2 इंटू रूट 2 दोनों irrational नंबर है लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है एक रेशनल नंबर है. रूट 2 इंटू रूट 3 अंडर रूट 6 एक irrational नंबर है. फिर उसी तरीके से द quotient ऑफ टू irrational नंबर इज ऑलवेज एंड the quotient of two irrational number may be rational or an irrational number. Just like two examples, root 5 is divided by 2 root 5, ये 1/2 रेशनल नंबर हो गया. रूट 3 बाई रूट 2 एक इरेशनल नंबर हो गया. तो इस तरह से जो क्वोटिएंट होता है दो इरेशनल नंबर का वो एक रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. मैंने आपको पहले बताया था मैं आपको पूरी थ्रोली पढ़ाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ये मेरा वादा है आपसे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप फॉलो करते हैं तो. नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? According to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed. According to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as the product of prime. And this factorization is unique apart their
ऑर्डर। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। जस्ट लाइक 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। जस्ट लाइक 20, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल यूनिक होगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका, इस चैप्टर का, वो है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दो नंबर्स का? जो कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि जो भी हमारे पास नंबर दिया होता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका हम लोएस्ट पावर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं 36 है और 48 है। सपोज दैट ये दो नंबर है। अब 36 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 और 48, तो ये 2 का पावर 4 हो गया है, 3 का पावर 1 हो गया। जब बात एचसीएफ निकालने की आएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा और उसका जो लोएस्ट पावर होगा वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 कॉमन तो है, फिर हम पावर देखेंगे, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 2 कॉमन ले लेंगे। यहां 3 है, यहां 3 का स्क्वायर है तो एक 3 ले लेंगे। जो लोएस्ट होगा 4 इंटू 3, दैट इज योर आंसर। बात जब एलसीएम की आती है स्टूडेंट्स, जब बात एलसीएम की आती है तो हम हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट, तो इन दो नंबरों का एलसीएम अगर निकालना होता तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाले नंबर लेते हैं। तो इस तरह से 16 इंटू 9, 144, ये हमारा एलसीएम हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इसकी थ्योरी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका रिजल्ट बेस्ट होगा, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।